कर्नाटक मैसूर के नरसिम राजा क्षेत्र में जो रीजनल स्कूल यहाँ पे जो चल रही है, अभी अभी हमारे को एक पेरेंट्स का रिव्यू मिला है कि एनआर क्षेत्र की एक बेस्ट स्कूल कहा जा सकता है इस रीजनल स्कूल को करके जो है एक पेरेंट्स ने रिव्यू दिया था। जी। तो उसको लेकर आज आप यहाँ पे जो है एक साइंस एग्जीबिशन रखी गई है जिसमें साइंस मॉडल्स के साथ साथ इस्लामिक मॉडल्स भी हमें देखने को मिले। सर, पिछले कितने सालों से आप इस स्कूल को चला रहे हैं सर? सर हम पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सर। माय नेम इज़ मुजीबुल्ला अब्दुल रशीद और मैं ट्रेजरर हूँ एंड प्लस दिस ब्रांच आई एम हैंडलिंग एंड वी आर रनिंग दिस स्कूल सिंस 2018 जी। and as a tradition of our regional schools, every year we conduct science expo wherein we can showcase the talent and explore the talent of the students and alhamdulillah every year it is a good success and we have been improving every year. So how many branches are there in Mysore city, sir? See, regional we have around 7 to 8 branches, okay, all handled by different So this persons. is the first No, this is not the first. In fact, the founding regional school is from the Chitradurga and we have the first branch in Tilak Nagar, opposite Idgah Garden. And this is the fourth branch we have opened in 2018. So from primary to high school. Yeah, from pre-KG to grade 10 we have. Sir, how many students are there, sir, in your school? So we have around 1,200 students this year. So how is the response of the students? Response is okay. Since the COVID time, we had students who suffered a lot, lack of studies, lack of infrastructure, and alhamdulillah, these 2 years we just focused on academics, as most of the students have lost touch with the learning. जहाँ भी स्कूल का मसला आता है तो वहाँ पे दूसरा मसला जो होता है वो फीस का मसला होता है। जी जी। तो फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी हमें जो है पेरेंट्स ने रिव्यू दिया है। तो क्या कोविड के वक्त जो है आपको फीस के लिए कुछ प्रॉब्लम हुई थी? जी बहुत प्रॉब्लम हुई। 2 years of COVID, it took us back 4 years, okay? क्योंकि एक तो पूरा स्ट्रेंथ नहीं आया और जो भी स्ट्रेंथ आया we took only 50% of the fee. So we suffered huge financial losses during these COVID times. पेरेंट्स के रिव्यू में ये भी था कि आप जो है उन्हीं जो है इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी दी गई है। Yes, yes. See, for the benefit of the parents, earlier we had 2 systems, like 2 installment facilities, but from this year on, last year onwards, we have introduced 3 payments. They can pay it 3 times. सर, बाहर से स्कूल देखने के लिए जो है एक बहुत बड़ी इमारत के अंदर खोली गई है। क्या यहाँ पे मिडिल क्लास लोग के बच्चे भी जो है आसानी के साथ यहाँ पे तालीम हासिल कर सकते हैं? आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली ओनली बिकॉज वी हैव केप्ट द फी वेरी अफोर्डेबल. जी। Unlike we have some other schools which they are charging very high fee structure. So we kept almost 50% from those high schools. सर, एसएसएलसी के अंदर जो है यहाँ का रिजल्ट किस तरीके का है? Sir, this is the third batch of SSLC and the last 2 batches का भी हमने more than 95% result we have come. सर, आज यहाँ पे जो आपकी साइंस एग्जीबिशन रखी गई थी तो इसके अंदर जो है प्रोफेसर नबी जान ने भी जो है एक चीफ गेस्ट की हैसियत से यहाँ पे स्कूल में विजिट दिया है। तो उनको आप क्या कहना चाहते हैं सर? Sir, it is a great honor for us. He accepted our invitation and it is a motivation not only for us, for our students and for our staff, and inshallah we request Mr. Nabijam to keep visiting us and motivate us and guide us. तो यहाँ के पेरेंट्स के लिए कुछ आपके ज़रिए, हमारे न्यूज़ चैनल के ज़रिए से कुछ? जी, पेरेंट्स से सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि लाइक दीज इवेंट्स वी रिक्वेस्ट देम टू एनकरेज एंड मोटिवेट देयर चिल्ड्रन टू पार्टिसिपेट बिकॉज द होल ईयर व्हाट द स्टूडेंट्स हैव लर्न they put it into practice, this one. So it is a real life experience for the students. So we request all the parents to have high participation in the expos.
एडमिनिस्ट्रेशन से आप जो है आपके स्टाफ को क्या कहना चाहते हैं सर? Sir, staff, Alhamdulillah, to make success of this event, they have worked relentlessly, tirelessly. They stayed long hours. Not only teachers, even students have supported them, and many of the parents have supported by giving the models on the right time. And Alhamdulillah, as you can see, we have. You can look. There is something good. सो आने वाले दिनों के लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। आज आप केवी न्यूज़ को जो वक्त दिया है इसके लिए हम आपके आभारी हैं। हमें बात करने के लिए आपका धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. सर, आज जो है आप एक मुख्य अतिथि के रूप में रीजनल स्कूल के अंदर जो है इस साइंस एग्जीबिशन को आए हुए हैं। यहाँ के पूरे तमाम क्लासेस को आपने विज़िट किया है, यहाँ के मॉडल्स को देखा है, तो यहाँ के तमाम मॉडल्स को देखने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आज सुबह से ही रीजनल इंटरनेशनल स्कूल के अंदर में आया। बड़ी खुशी होती है क्योंकि हर दिन सुबह से शाम तक का नेगेटिव कमेंट ही सुनते हैं। हमारे बच्चे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब भी जब ऐसे इदारे में आते हैं तो सुकून होता है, क्योंकि बच्चे उनके अंदर के जो यहाँ एग्ज़िबिशन के नाम से ज़्यादा वो बच्चों के हिडन टैलेंट का एग्ज़िबिशन है यह। और मैं सबसे पहले मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि मैनेजमेंट, स्टूडेंट्स, स्टाफ एंड पेरेंट सपोर्ट, विदाउट पेरेंट सपोर्ट ये कुछ भी नहीं कर सकते। उनका इन्वॉल्वमेंट, उनका डेडिकेशन देखे तो बहुत अच्छा रहा। और सिर्फ यहाँ साइंस ही नहीं रही बल्कि दीनियात भी है, और जो बहुत ज़रूरी है हमारे बच्चों की तरक्की के वास्ते, नशोनुमा के वास्ते, तालीम के वास्ते, या दीन के जो मॉडल्स जो पेश किए, मैं समझता हूँ यहाँ हमें कुछ सीखने को मिला। सर, जहाँ तक एनआर क्षेत्र के अंदर स्कूल्स की बात आती है तो दूसरा नाम नबी जान का आता है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है सर? ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। मुझे उस काबिल समझा यहाँ के कायद मिल्लत अल्लाह तनवीर सेठ साहब। मैं रिटायर्ड होने के बाद मुझे सारी एजुकेशन की सर पर जिम्मेदारी दी है। मैं यहाँ स्कूल, हर स्कूल मैं अपनी समझता हूँ, चाहे गवर्नमेंट रहे चाहे प्राइवेट रहे, क्योंकि बच्चे हमारे पढ़ते हैं वहाँ। वो बच्चों की क्या कमी पेशी होती है, बच्चों के अंदर क्या ज़रूरत है, ये सारे चीज़ों को मैं हमारे एमएलए साहब की नोटिस में लाता हूँ। वो उसके लिए जो मुनासिब है वो करते हैं। और एजुकेशन डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से वाबस्ता है। मैं कोई छोटे मोटे गलत ये वो चीज़ें नहीं जाता, बस हमारे बच्चों की सरपरस्ती, हमारे बच्चों की रहनुमाई के साथ साथ नशोनुमा और उनके जो ज़रूरियात हैं वो पूरे होना, बस। सर, पिछले कितने सालों से जो है आप ये जिम्मेदारी ली है? तकरीबन मैं 7 साल से सेठ साहब ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। रिटायर्ड होने के बाद में तो पूरा सरगर्म पूरे स्कूल्स को मैं विज़िट करता हूँ। बस मेरे से ज़्यादा कोई उम्मीदें नहीं, बस बच्चों के साथ मैं एक उस्ताद की तरह मैं रहता हूँ। और मेरी उस्तादी बरादरी जो है बड़ी इज़्ज़त के साथ पेश आते हैं, हमारे सलाह मशवरे लेते हैं। और मैं यहाँ कुछ सिखाने के बजाय मैं खुद सीख रहा हूँ, मैं खुद एक तालिब इल्म हूँ जी। तो क्या इस 7 सालों में जो है आपने बहुत सारे स्कूलों को विज़िट किया होगा, तो वहाँ पे कुछ प्रोग्रेस हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। ड्रॉप आउट रेट्स के बारे में इंक्वायरी करते हैं, और जो बच्चे जो कोरोना के अंदर तो बहुत बच्चे ड्रॉप आउट्स हो गए थे, वो बच्चों को लाने के लिए जो कोशिशें हो सकती हैं मैनेजमेंट से, अवामुन्नास से, उलमा इकराम से, मसाजिद से, उनके भी खिदमत हैं। एक किस्म की बेदारी पैदा हुई है। तकरीबन नरसिम्हा राजा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 60 पर 2000 बच्चे हमारे नर्सरी से एसएलसी तक पढ़ रहे हैं, जिसमें 7000 बच्चे एसएलसी के एग्ज़ाम में बैठे हैं, जिसमें 90% पास हुए हैं। और कोरोना की वजह से जो 10% ग्रेस मार्क्स दिए वो बखिया बच्चे भी पास हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह तालीमी निज़ाम अच्छा है, इम्प्रूव हो रहा है, क्वालिटी है। और हमारे बच्चे दूसरे मोहल्लों को जाकर पढ़ने की बजाय हमारे ही स्कूलों में, हमारे ही मोहल्लों में अफोर्डेबल रेट पे पढ़ रहे हैं। ऐसे तो बहुत से स्कूल्स हैं, तकरीबन 80 स्कूल्स हमारे मैनेजमेंट के हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं। सर, कभी ऐसा हुआ है कि एसएसएलसी पास होने के बाद उन बच्चों को
किस दिशा में जाना है, उनके लिए कुछ गाइडेंस? उसके लिए गाइडेंस सेंटर भी हैं और टीचर्स भी हैं। अक्सर क्या होता है, हमारे यहाँ जो पासशुदा लड़के हैं उनकी तादाद बहुत कम है। लड़कियाँ बहुत पास होते हैं, आला नंबरात में भी काम होते हैं, और उनकी हायर स्टडीज़ के लिए हालात तो आप जानते हैं, वालिदैन भी भेजने के वास्ते नहीं हो रहे, दूसरे स्कूलों को जाना है। अगर यहीं पर उनके लिए हायर एजुकेशन तकरीबन 4 जूनियर कॉलेजेस हमारे एमएलए साहब एनआर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ही दिए हैं। अभी प्राइवेट में भी हो रहे हैं, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों के लिए भी बच्चों की अच्छी खासी तादाद है। लड़कियां बाकायदा हमारे ही माहौल में पढ़ रही हैं। जी सर, क्या आने वाले दिनों में और एजुकेशन पाने का जो रेट है जो उसे इंक्रीज़ कर सकती हैं? बेशक बेशक, अगर अल्लाह साथ दिया तो इंशाल्लाह अभी एक डिग्री कॉलेज है, अब 2 प्राइवेट डिग्री कॉलेजेस हैं, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में साइंस टेक्नोलॉजी के कॉलेजेस की भी दरख्वास्त जाकर है, मंजूरी हुई तो इंशाल्लाह। सर, जहाँ तक देखा गया है कि मेस्को, MES यहाँ पे जो ITIs हैं, तो मेरे लिहाज से जो है कुछ कम है ना सर ये टेक्निकल एजुकेशन यहाँ? नहीं, अब हमारे लड़के जो हैं SLC पढ़ने के बाद वो एज भी रहती है, फ़ौरन ITI, पॉलीटेक्निक, डिप्लोमा ये कर लिए तो फ़ौरन उनके जॉब हो जाते हैं इंडस्ट्रियल साइड में। उसके बावजूद वो हायर स्टडीज़ को भी जा सकते हैं, और उनको वहाँ गाइडेंस भी मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। वो फॉरेन कंट्रीज़ को जाने के भी चांसेस हैं उनको, यहीं पर उनको जॉब मिलने के भी अमकानात हैं। तो क्या ऐसे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स को इंक्रीज़ करना चाहिए कैसे? वैसे तो हर तरफ हैं टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं। मैसूर के सराउंडिंग में जितने भी गवर्नमेंट हैं वहाँ सब सीट अलाट होते हैं। CPC से शुरू होकर आरकेरे से, मलवल्ली से, नंजनगुड़ से, ऐसे सराउंडिंग में सब पॉलिटेक्निक्स हैं। खुद सिटी के अंदर भी हैं, प्राइवेट भी हैं, और बच्चे पढ़ रहे हैं। और उसका एडवांटेज क्या, फ़ौरन जॉब को जाने के बावजूद वो फिर उसकी हायर स्टडीज़ कर सकता है। सर, कहीं आपको, मेरा आखिरी सवाल ये है कि कहीं आपको जो है इस तरीके के कॉल्स भी आते होंगे कि हमारे बच्चे की फ़ीस नहीं भर सकते, हमारी बच्चियों की फ़ीस नहीं भर सकते? ये तो हर दिन का मसला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए मैं तो उसका काबिल भी नहीं हूँ, मगर वैसे काबिल लोग मैसूर के अंदर बहुत लोग हैं। तो क्या आप उनको जो है फॉरवर्ड करते? और जस्ट देखिए गुज़िश्ता इस मरतबा 7 बच्चे मेडिकल को सीट लेकर हैं, उसमें 2 बच्चे हाफिज़ कुरान हैं जिनको फ्री दाखिला मुस्लिम हॉस्टल में हुआ है। हर स्कूल्स के अंदर नो चैरिटी नो एक्सप्लॉयटेशन बेसिस पर एक इनकलाब आया है, हमारे बच्चों की रहनुमाई हो रही है। सर, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि जितने भी NR क्षेत्र के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े बिजनेसमैन हैं, और उनके पास वो हैसियत है जो दूसरों का हाथ पकड़ सकते हैं। क्या इनके लिए क्या आप अपील कर सकते हैं कि एटलीस्ट ऐसे बच्चों को ढूंढ कर जो है एक बच्चे का एजुकेशन को अडॉप्ट कर सकें? नहीं, यहाँ सिर्फ बड़े लोगों की ज़रूरत नहीं है। मेरा एक ही मशवरा, क्या हर साहिब तहसील आदमी जिस कदर अपने बच्चों की देखभाल करता है, फीस, यूनिफॉर्म, ऐसा इसी तरह अपने एक बच्चे दूसरे बच्चे का है तो यह मसला हल हो जाता है। मेरे 2 बच्चे हैं, उसके साथ और एक बच्चा पड़ोस का, बस मसला हल हो जाता। तो आज आपने जो है KV न्यूज़ को जो वक्त दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। हमें बात करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं KV न्यूज़ का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये तालीमी बक़ा के लिए, तालीमी तहरीक में आप लोगों का बहुत रोल रहा है। इसी तरह आइंदा भी अवामुन्नास के अंदर, वालिदैन के अंदर तालीम की बेदारी को उजागर करें, क्योंकि तालीम ही एक ऐसा ज़ेवर है जिसके बग़ैर हमारी कोई औकात नहीं है। बस इतना कहते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रीजनल इंटरनेशनल स्कूल सातगढ़ली मैसूर में दीनियात और साइंस एग्जीबिशन का प्रोग्राम अमल में आया। इस मौके पर हम यहाँ के मैनेजमेंट, टीचर्स और बच्चों को मुबारकबाद पेश करते हैं कि इन्होंने तालीमी मसरूफियात के बावजूद इस कोशिश में लगे रहे और इसे कामयाब बनाते रहे। ये रीजनल स्कूल की जो मेन ऑफिस है
वो कदीम ईदगाह तिलक नगर मैसूर में वाक़ है। बाकी जितने इसके ब्रांचेस हैं उन तमाम शाखों में ये रीजनल इंटरनेशनल सादगढ़ली मैसूर का जो इदारा है सबसे आगे है और तरक्की याफ्ता है। रोज़ बरोज़ यहाँ के तलबा में सलाहियतें पैदा हो रही हैं। ये दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम का होना भी और दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम का होना भी ज़रूरी है। ये ऐसा ही है जैसे रूह और जिस्म का ताल्लुक़ है। हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुम हमेशा फरमाया करते हैं कि जिस तरीके से उम्मत को आलिम दीन, मुफ्ती साहिबान और काजी साहिबान की ज़रूरत है, इसी तरीके से उम्मत मुस्लिमा को टीचर्स की, लायर्स की, डॉक्टर्स की और प्रोफेसर्स की ज़रूरत है। तो मैं आपके इस चैनल के ज़रिए से पूरी कौम को ये दावत देता हूँ, पैगाम देता हूँ कि स्कूल बनाए तो मेयारी बनाए, आला बनाए, कि हमारी बच्चों की सलाहियतें ज़ाय ना हो और ऐसे स्कूलों का इंतखाब करे जहाँ पर असरी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी हो। कितने ऐसे इदारे हैं जहाँ पर महज असरी तालीम की वजह से हमारे बच्चे असरी तालीम में तो आ गए हैं लेकिन दीनी तालीम ना होने की वजह से जो है बहुत ज़्यादा नुकसान का शिकार हो रहे हैं और बेदीनी की तरफ वो माइल हो रहे हैं। अब वैसे मैसूर के अंदर बहुत सारे हमारे इदारे हैं जहाँ पर मुसलमान मैनेजमेंट चलाते हैं, उसमें पर्दे का भी लिहाज रखा गया है। तो मैं आपके ज़रिए से ही कहता हूँ कि अपने बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम और दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम का भी बनाने की कोशिश